میں نے ابھی تک کوئی آڈیو نہیں سنی جس پہ بحث ہو رہی ہے. اور زیادہ کانی صاحب یہ اسلام میں یہ جی پیر صاحب یہ ابو میں ایک منٹ گال چیک کر دے. خنزیر کا ایک آئی ڈی ہے, یہ ذرا اٹھا لیں اس کو. میں گل کرن دے ذرا. یہ ایک منٹ یہ ابو خنزیر کو اٹھا لیں. مجھے یہ بتائیں اسلام میں زنا کب سے منع پیر صاحب؟ مجھے تو نہیں لگتا منع ہے زنا. بتاتا ہوں. ایک سے حضرت مسلم نے منع کر دیے, اجازت نامہ نہیں ہے حضرت مسلم کی کتابوں میں نہیں ہے, وہ زنا کی اجازت نامہ نہیں ہے. یہ سب نہیں ذات اس کا نہیں تھا. اسلام میں زنا کب سے منع ہو گیا؟ میں تو حوالے دے سکتا ہوں اپنے ساتھ کے. اعلیٰ حضرت ابھی جو ہے نا موضوع کو چینج نہ ہونے دے پلیز پلیز. یہ ابو خنزیر کو نیچے سے اٹھائی گئی ذرا. اچھا ذرا آڈیو چلائیں دوبارہ, میں بھی سننا چاہتا ہوں. پھر میں نے نہیں سنی نہیں, وہ آڈیو پوری نہیں سنائی گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بھائی ابو خنزیر کو اٹھائی میرے بات صاحبہ ایک منٹ خاموش ہو جائے. عامر نذیر نے بار بار آ کر کہا تھا کہ قرآن حدیث میں کیا حکم ہے, قرآن میں کیا حکم ہے. رزقانی صاحب ایک منٹ آپ بھی تھوڑا سا بند کر لیں منہ. اس نے بار بار کہ قرآن سے فتویٰ دو, قرآن سے بتاؤ. میں قرآن سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. احمدیوں میں ڈاکٹر صاحب ہے نا ہمارے, ان سے جا کر پوچھ لیں. اور یہ اوپر شیخ ہادی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں. اس نے بار بار 50 مرتبہ میں قرآن سے بات کرنے آیا ہوں. اچھا میں ویڈیو سناتا ہوں, صبر کریں. اس نے بات کی ہے اور یہ نہ کہیں کہ اس نے جو قرآن کی بات کی نہیں ہو تو شریعت کی بات کر رہا ہے. وہ پوچھ ہی قرآن سے رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں دیکھوں گا قرآن سے دیکھنے کے طلب بات ہے, میں دیکھوں گا, اس کو دیکھ کر پھر بتاؤں گا کہ کیا فتویٰ اس کے اوپر. یہ اس نے جا کر فتویٰ قرآن پاک سے مانگا تھا. اس بات میں عمر بات نہیں کہہ رہی ہے. عمر بات کو ایسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس معاملے کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. دیکھیں میں نے وہاں پر میں نے یہ سنا پیر صاحب اب عامر نذیر کی نظر میں یہ پورے طرف کر رہے ہیں کیا جماعت احمدیہ کے مسلمان مانتا ہے. نمبر 1. دوسرا مجھے یہ ثابت کرے, پیر صاحب نے کہا کہ یہ باقی چیزیں جو ہے یہ تو ان کی ہو گئی. میں نے کہا جی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حضرت علی کے مقام تھا اس کے پاس, کیا اس کو کوئی اتھارٹی تھی؟ کیا مجھے یہ اس عورت کی طرح ثابت کرتا ہے؟ کیا یہ مجھے جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار تھا؟ کیا میں مدہ کنڈا کی بیٹی میں نے اپنے باپ کی تصویر لگائی؟ یہ جو الزامات لگائی ہے ان کو ثابت کرنا اس کا کام ہے. یہ میں نے 5 چیزیں پیر صاحب کے آگے رکھی. میں نے کوئی بات نہ غلط کی ہے نہ مجھے ضرورت ہے غلط کرنے. سننا چاہتا ہوں, وہ سنیں پوری ذرا. اب پھر آڈیو سنائیں گے, سنو نہیں کسی کی. یہ بات کرے, دوسرا ہے, تیسرا بات کرے, چوتھا ہے. بھائی تھوڑا ہماری بھی تو سن لو. آپ کو بھی سن لو کیا ہو رہا ہے. ہاں سن تو لو. خان صاحب اجازت ہے محترم, سن لیں آپ کو تاکہ بات سمجھ آ جائے. ہاں یہ دیکھو پورا بات سمجھائیں گے, اس کے بعد کوئی اور سمجھائیں گے. ایک بعد میں اپنا بات وہ سمجھا ہی نہیں سکتا. زاہد صاحب جی سر, مجھے میں بات تھوڑا کرنے دیجیے نا محترم. نہیں سر, وہ کوئی آپ کو نہیں روک رہا. میں صرف 5 منٹ کے لیے فون پہ ہوں. ابھی تک کیوں نہیں بات کرنے دے رہے خان صاحب؟ جی سر, نہیں سر خان صاحب ابھی بات تو کر رہے دیجیے سر. وہ آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں مجھے 5 منٹ دے دیں, میں فون کال پہ ہوں, میں 5 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. 5 منٹ دے دوں, 5 منٹ کے بعد پھر میں مجھے ایک اور 5 منٹ مانگے گا. 2 منٹ میری بات سن لیجیے نا سر. میں نے فون ہولڈ کر کے کیا. اس وقت سے پیر صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے, بات تو کرنے دیجیے. چلیں سر آپ بات کر لیں, بات کریں. ٹھیک ہے, میں اپنا فون ہولڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ بات کریں. جب یہ بات کی گئی کہ عامر نذیر صاحب نے مسلمان سمجھ کر, ان کو مسلمان سمجھتا ہے, اس لیے جا کر ان سے پوچھا لڑکی ہے کیا ہو گیا؟ لڑکیوں کی بات نہیں, کیا ہے لائف سے ہٹ کر ہے یار. کہاں سے گیا یہ, کہاں سے؟ ایک سیکنڈ خان صاحب میوٹ کریں اپنے آپ کو. ہاں جی چلو پیر صاحب بات کریں. عامر نذیر صاحب جی پیر صاحب کریں, بات کریں. جی عامر نذیر صاحب جب وہاں پر گئے تھے, ان سے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ اگر کوئی زنا ہو
क्या सजा है, क्या हद है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ मालूम है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो मालूम है हमें, तुम्हारे यहाँ क्या है बताओ? कोई नहीं बता सका। आप कहते हैं बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पीर साहब जो आपके यहाँ है वो आप ही भाई बता दें क्या है। एक मिनट जो हमारे यहाँ है वही है। बात नहीं हुई, जिस तरह से वो छोड़ दीजिए हादी साहब, ऐसे बात नहीं हुई, ऐसे बात नहीं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले ऑडियो पूरी सुने प्लीज। सुन दिया हमने ऑडियो, नहीं सुनी, मैंने रिकॉर्डिंग की प्ले करूं उसको? नहीं, मैं हादी साहब बात सुनिए, पूरी रिकॉर्डिंग सुने, पूरी रिकॉर्डिंग सुने प्लीज। आप लोग बात करने देते ही नहीं हो, बस शोर शराबे के आदमी सुने। भाई बात करने दीजिए, बात करने दीजिए मुझे। कुरान तो सिरोज कहते हो, कुरान ये हालत है, ये इंसाफ देने चले हैं। तो पीर साहब आप बात को समझ नहीं ना रहे। पहले भाई मेरी बात तो पूरी सुनो, बात सुने ना पहले। मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं समझ रहा हूँ ये पूरी पीर दुनिया साहब नहीं पहले आप रिकॉर्डिंग सुने, पहले आप उसकी बात मोहतरमा, सुने। आप मेरी बात सुनो। अच्छा मैं क्या आप मेरी बात तो सुनो। करने से कुरान तो सिरोज ये बंदा यहाँ जेब ओके खान साहब ये कह रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये समझते हैं कि हम इन झूठों को सुने? अच्छा मैं क्या ये झूठ है। ऐसी गल करने से कुरान एक मिनट जरा म्यूट करना पीर साहब प्लीज। म्यूट करो। जी गल की ना करो, बाकी सारी गल्लां की। अच्छा मैं क्या, मैं सुबह भी आया सी गल करनी सी कुरान तो सिरोज कहते हो, कुरान से बात कोई नहीं करता, कुरान से बात कोई नहीं करता। जी गल की जा सकती कुरान तो। वो नजीर भाई आप हजरत अली वाला ते क्लियर कर लो मामला। अच्छा वो ऑडियो हजरत अली वाला मामला प्लीज क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसे क्या करें ये ते गल कर सकते हो ते कुरान से पहले कुरान देखो असल वो जरूर कर लेने हैं, मसला ये बाद में आप जिसकी बाद में पहले कुरान चाहे गुस्ताखी कर सकते हैं, पहले कुरान बात करें यार, जो आप कहना कह लें, लेकिन पहले कुरान से बात करनी है। नहीं वो एक वो नहीं करनी कुरान नाल गल में हो गया। आप क्या कहने जो कहते कुरान से बात करनी, कुरान से बात। एक मिनट जवाब भाई प्लीज जरा देखिए, हमने ये जरा ध्यान रखना है कि अगर एक बंदा कुरान करीम से बात करने का दावा करके आया है तो बात कर लेते हैं। कमलात भाई मौजूद है, मैं क्योंकि पेशेंट बिजी हो जा रहा है, से तो बात होती रहेगी ना। कुरान अहले बैत की गुस्ताखी जी इतनी की सुन ली है। अभी जी क्या कह रहे हैं प्यारे भाई? से कह रहा है पीर साहब, आप आमर नज़ीर को एक जगह पे पलीद जानवर साबित कर चुके हैं, तो आप उसकी हिमायत में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये बताएं पहले। आप उसको कुत्ता और पलीद साबित कर चुके हैं एक ब्राड के ऊपर, आप उसकी हिमायत में आप बोल रहे हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट। एक बात अच्छा, जी राहिल भाई मैं अपनी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। जाहिद अशकानी साहब अब आप एक तकरीर कर ले और उसमें थोड़ा जाहिद अशकानी साहब, मैं अगर उसका जवाब मैं देना चाहूँ तो फिर जो है हादी साहब को वो बीच में कूद पड़े और वो कोई सवाल करे, उसका जवाब देना चाहूँ फिर इस तरह से आप लोग कूदते रहो। नहीं जाहिद अशकानी साहब बदजनी नहीं करें, हमें समझ ही नहीं आया। कूदते रहो। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं आपकी अच्छा मुझे भी बात करने दे, मुझे कॉल स्पेशल करके बुलाया तो मुझे बात कर लेने दे। सर वो अक्सर अपना वो बकर साहब जाहिद साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर जाहिद साहब आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जाहिद साहब से बात कर रहा हूँ और पैसों का चक्कर है, अगर चाहिए तो मैं आपको दिखा दूं ताकि होश ना उड़ जाए। ये देखें। नहीं सर आपकी बात पे ये सुन रहे, कोई ऐसा मसला, ये पैसे आए हुए हैं बाहर से तो वो होश ना उड़ जाए लोगों के, तो मैं पैसे गिनती कर रहा हूँ। अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मेरे 1000 यूरो चले गए, अब ये जो हाथ में ये ना चले जाए। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने वाइफ से बात कर रहा हूँ, प्लीज वो पैसा लेकर आए मेरे लिए। अच्छा ठीक है सर, मेरा फोन था, मैंने तो फोन बंद कर दिया। और आप राहील साहब आपने एक बराड पर मिर्जा साहब को गालिबाज साबित किया, उसके बाद भी सपोर्ट करते हैं। देखो आपकी ऑडियो मौजूद। अच्छा यार ये फालतू की बातें छोड़े, मेरी बात सुने। बात सिर्फ सिंपल इतनी सी है कि हमारा तो शुरू से यही दावा है कि मरज़ई जो है उनकी शरीयत अलग है, उनका इस्लाम अलग है, उनका कुरान अलग है, और ये इनकी किताबों से हम लोग साबित करते हैं। तो अगर आमर नज़ीर साहब ने ये कहा है कि आपकी शरीयत में इसका क्या हुक्म है,
तो ये तो सारी दुनिया जानती है, मरज़ई खुद भी जानते हैं कि हम शुरू से ही इनके साथ जो बात करते हैं यही कहते हैं कि आपकी शरीयत अपनी है। ओ अबू बकर वो कुरान की बात कर रहा है, कुरान दो है कि एक है? वो कुरान की बात कर रहा है। ठहर जा, कुरान मैं तेन कुरान दसना, मेरी गल सुन, कुरान तेरे मैं पेश करना। 135 साल च मौलवी तो दस नहीं सके ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ क्या करो बाकी सारी गल्लां की। अच्छा मैं कहा मैं सुबह भी आया करने वाली कुरान को कुछ रोज कहते हो कुरान से बात करनी करता, कुरान से बात करनी करता। जी जी पर गल की जा सकती कुरान तो नज़ीर भाई अपना हज़रत अली वाला ते क्लियर कर लो मामला। सर वो देखो तली वाला मामला प्लीज क्लियर कर लो क्योंकि ऐसा क्या करें, ये गल कर सकते हो कि कुरान से पहले कुरान देखो असल वो जरूर कर लेने पर मसला ये है बाद में आप जिसकी बाद में पहले कुरान चाहे गुस्ताखी कर सकते हैं, पहले कुरान जो आप कहना कह लें, लेकिन पहले कुरान से बात करनी है। नहीं वो एक वो सवाल नहीं करनी कुरान नाल गल में हो गया। आप क्या कहने जो कहते कुरान से बात करनी, कुरान से बात एक मिनट जवाब में प्लीज जरा देखिए से बात करने का दावा करके आया है तो बात कर लेते हैं। कमलात भाई मौजूद है, मैंने क्योंकि पेशेंट का जरा बिजी हो जाना, कुरान से तो बात होती रहेगी ना। कुरान कुरान दी केली लोड़े तो केड़ी लोड़े कुरान दी ड्रामा जेड़ा रोज ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पहले कुरान उनके क्या कुरान अहले बैत की गुस्ताखी अहले बैत पहले ने कि कुरान पहले थे। अभी ने कुरान याद आ गया। ਤੁਸੀਂ अहले बैत ਦੇ ਏਡੇ ਲੜਦੇ ਹੋ। गल सुनो हमें सब गल सुनो, परेशान ना हो ना परेशान करो, सिर्फ इन्ना दस दियो कि इंजरी इल्जाम लग रहे हैं कि हकीकत है बारे गल कर रही है। गलत बात है आमिर भाई, ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਟਰੁਥ ਸੱਚੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। अच्छा ਉਹ पे ਦੱਸਦੇ लो जी सब ने ये सुन लिया बात, ठीक जी। है। अच्छा शेख साहब और ताहिर भाई, सर मैं इंतज़ार कर रहा था जाहिद भाई का। वो पहले मैंने अपना फ़ोन ख़ास तौर पे अपना होल्ड पे कर दिया, मेरा ज़रूरी कॉल थी, अब उनकी भी मसरूफियत होगी। मैं फिर इनसे बात हो जाएगी, मेरा भी मसरूफ़ हो जाऊंगा। आप लोग क्या करें, मौका दे दें जी किनको सर? पीर साहब को बात कर मैं तो उनके लिए तैयार था, उनके कुछ मसरूफियत हो गई। ये डॉक्टर साहब भी गवाह हैं इस बात के, डॉक्टर साहब बात बता दे जो बात और हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैंने हदीस जो बयान की थी तो वो कह रहे थे कि उसमें आपने ये बयान किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था। वो मेरी गलती थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बुलाया था, यहूदियों ने बुलाया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शरीयत के मुताबिक फैसला करने के लिए। तो वो ये बात मैं सिर्फ उनसे कहना चाह रहा था, अपनी करेक्शन करना चाह रहा था। लेकिन उनकी वो पैसे का मामला आ गया और उनकी बेगम भी आ गई, तो एक पैसा दूसरी बेगम, तो फिर इंसान मर्द की क्या पीछे रह जाती है। तो चले ठीक है, आप लोग दो दोस्त बात करें, इंशाल्लाह फिर बात होती है। जज़ाकल्लाह जी मैं इजाजत चाहता हूँ सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शेख साहब मैं आपको सर आप काबिल सताइश हैं सर, आपने बहुत अच्छा किरदार प्ले किया, जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह सारे भाइयों का। तो हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, सिर्फ हमारा मकसद ये है कि भाई वो तुम लोगों की बहन है, हमारे साथ इख्तलाफ करती है, लेकिन उसके साथ जुल्म ज्यादती मत करो, हमारा बस ये मकसद है। यही बात, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, फिर मैंने भी मसरूफ़ हो जाना है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब आप भी सुबह उधर ही थे, तो ये क्या बात हुई थी? ये बात यही हुई थी कि ये आमिर नज़ीर साहब जो आए हैं, ये कह रहे थे मैंने कुरान मजीद से कोई बात करनी है आपसे, तो हम में से कोई भी नहीं था जो इनके साथ बात करने के लिए तैयार था, कि क्योंकि हर रोज़ तो इनसे डिबेट होती रही है, कोई नई बात थोड़ी थी। तो इन्होंने जो मसला पूछा है वो तो जानिया के मुतालिक पूछ लिया इन्होंने। तो जो डॉक्टर साहब थे वो, हम तो इनको ये कह रहे थे जो आपने बात किया उसके ऊपर बात करें। एक तौहीन की है और उस तौहीन के बारे में आप क्या कहते हैं, और दूसरा आपने जो इल्ज़ाम लगाया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो ऐसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बिशारात दी हैं। तो जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए, उनके ऊपर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी तरफ बात को मंसूब कर रहे हैं, जो कि मुसलमान सोच भी नहीं सकता। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि अपना ढोल जो है वो हमारे गले में क्यों डाल के बजाना चाहते हैं भाई? अपना ढोल जो आपने ढोल बजाना शुरू किया है उसको अपने गले में डाल के बजाएं। अब आप हमारी तरफ दौड़े हैं,
تو ہم ابھی ان کو